Honorable Minister of Opposition, please. B. When the government is Honorable members, the Honorable Speaker. हाँ मैं जा रहा हूँ सब यहाँ the newly elected members have to take the oath of affirmation. Secretary General, please. महोदया, श्री लक्ष्यहीन जी जो तमिलनाडु के दक्षिणी चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महोदय, आप शपथ लेना चाहेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? महोदय, मैं शपथ लेता हूँ। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? हिंदी में शपथ लूँ। मैं लक्ष्यहीन जो युवा संसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती अंशिका जी जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। महोदया, आप शपथ लेना चाहेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी? आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? I, Anshika Singh, having been elected a member of the lower house of the youth parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith to the Constitution of India as by law established, that will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Honorable members, as we meet after an interval of 2 months, it is my sad duty to inform the House the demise of our former colleague Prem Prakash. Shri Prem Prakash ji was a great writer and a dedicated social worker. He represented the backward classes and downtrodden. He was an effective author and he took the interest in the proceedings of House. He passed away at New Delhi on 5th
August 2020 at the age of 62 years. Honorable Prime Minister, please. Madam, I rise to pay my tribute to Shri Prem Prakash, whose death has been deeply mourned by all. I was indeed shocked to hear it. He was such a dedicated social worker and a writer personally too. His death has been a great loss to me, for his work always guided me. I should like to extend my deep condolences to his family. Honorable Minister of Opposition, please. महोदय, मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को भी संयोजित करता हूँ। श्री प्रेम प्रकाश जी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से ओतप्रोत एक उच्च कोटि के विद्वान और प्रचारक थे। वह कर्तव्यनिष्ठ, समाज सेवी एवं एक कर्मठ देशभक्त थे। उन्होंने जिस लगन, तत्परता और निष्ठा से समाज एवं देश की सेवा की है, वह अविस्मरणीय है। उनके ना रहने से हमने बहुत अच्छा सामाजिक सार्वजनिक एक कार्यकर्ता खो दिया है। मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करना चाहूँगा। We all stand to the mourn the death of Shri Prem Prakash. Secretary General, please convey our condolence to the brave family. The PM will now introduce new ministers. Speaker Madam, I have the pleasure of introducing to you, through you, the House, my colleagues, the new ministers. Shri Love, Minister of Rural Development. Srimati Yashika, Minister of Agriculture. We now move on to the question hour. Question number 101, Ms. Nitya. Honorable Madam Speaker, will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state A. Whether the children are getting affected by the corona infection in the country, and if so, the details thereof, along with the current status of vaccination of children in the age group of 12 to 18 years and 5 to 12 years. B. Whether the government is aware of the virus strain most commonly found in the children up to the age of 18 years. I repeat, 18 years. And if so, the details thereof. C. The total number of children registered for vaccination and those vaccinated along with the percentage thereof. And D. Whether any time limit has been fixed for the complete vaccination of children, and if so, the details thereof. The Minister of Health and Family Welfare, please. Thank Madam Speaker. I would like to give the submission which is follows. According to World Health Organization, COVID-19 infections among children and all adolescents typically cause less severe as compared to adults. As on 26 July 2022, 9.96 crore first dose. I repeat, 9.96 crore first dose. 82.2% coverage and 7.79 crore second dose. 64.3% coverage have been administered in children between 12 to 18 years of age. Madam Speaker, vaccination below 12 years of age has not started under National COVID-19 vaccination program in the country. Adequate COVID-19 vaccine doses are made available to all state UT to vaccinate all eligible children with first and second dose. As reported by Indian COVID-19 Economic Consortium INSSCOG, COVID-19 virus variants detected among the samples analyzed by INSSCOG from 1st January 2022 to 25th July 2022 in children aged 0
अध्यक्ष महोदया, क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कब रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का क्या रुख है? ख भारतीयों की मदद के लिए सरकार द्वारा क्या राजनीतिक प्रयास किए गए हैं? मिस भूमि, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लीज। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बता दूं कि कब यूक्रेन में संघर्ष की शुरुआत के बाद से ही भारत ने युद्ध को तत्काल समाप्त करने तथा शांति स्थापित करने का आह्वान किया है। एक शांति प्रिय देश होने के कारण हम मानते हैं कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी विकल्प नहीं है। भारत ने दोनों पक्षों से आपसी सौहार्द के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है तथा भारत ने संघर्ष को समाप्त करने के कूटनीतिक संवाद और सभी राजनीतिक प्रयासों के लिए अपना समर्थन भी दिया है। परंतु जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां बनी, तब हमने 1 मई 2022 को भारतीय दूतावास यूक्रेन का संचालन दोबारा बहाल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, मिस दिव्यांशी। अध्यक्ष महोदय, क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार के पास दिल्ली व भारत में प्रवासी मजदूरों कामगारों की संख्या संबंधी आंकड़े हैं, और यदि हाँ तो तन संबंधी ब्यौरा क्या है? ख क्या सरकार दिल्ली व भारत में प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए कोई कदम उठा रही है? तो इसके लिए, जी हाँ, इसके लिए भी तन संबंधी ब्यौरा क्या है? श्रम और रोजगार राज्य मंत्री मिस संजू प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के पटल पर रखा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों कामगारों की कुल संख्या 2 लाख है। सरकार ने प्रवासी कामगारों की रक्षा के लिए अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार रोजगार का नियमन और सेवा शर्तें अधिनियम 1979 अधिनियमित किया है। इसी प्रकार सरकार की अन्य हितकारी योजनाएं इस प्रकार है। भवन और अन्य निर्माण रोजगार के तहत 7,413 करोड़ की वित्तीय सहायता, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार के तहत 39,290 करोड़ रुपए के साथ 50,78 कार्य दिवसों का सृजन। Question number 104, Mr. Aram. Honorable Speaker, ma'am, will the Minister of Education state be pleased to state A. Whether the government proposes to train teachers of far-flung rural and backward areas for effective teaching after the implementation of new education policy 2020. B. If so, the training method adopted for the purpose. C. The details of the timeline set for the said purpose. Ms. Soumya, Minister of Education, please. Yes, ma'am. As per new education policy 2020, every teacher is expected to participate in continuous professional development for minimum 50 hours in a year. The central government had made an integrated teacher training program for the holistic development of the school heads and the teachers, named NISHTHA. The program aims at the capacity building of teachers, the heads of the schools, and the key resources persons from all parts of the country, including remote areas, rural areas, and the backward villages. In view of the impediment requirement of learning and teaching, since the education falls in the concurrent list of the Constitution of India, state and UT are also required to plan and implement in-service training for all teachers as per vision of new education policy. Moreover, teacher training is a continuous process. Next question number 105, Mr. Gaurav. अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी मुझको यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में बेरोजगारी प्रतिशत कितना है, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की अलग अलग दर क्या है
क्या इसमें कुछ कमी आई है? ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर तनिष्क प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूँ कि भारत में बेरोजगारी की दर 7.1% से बढ़कर 7.8% हो गई है, जिसका कारण कोरोना महामारी है, जिसने सारे विश्व की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। भारत में तो मात्र 0.7% की ही बढ़ोतरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 6.6% से बढ़कर 8.3% हो गई है, जिसकी वजह से कृषि संबंधित बेरोजगारी बढ़ी है। और अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 8.2% से घटकर 7.3% हो गई है। अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्रों में 22% नौकरियों की भी बढ़ोतरी हुई है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 1 मिस्टर पुष्कर। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 2022 में सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा पहले से ही बेरोजगारी दूर करने के लिए योजना चल रही है। जैसे पहली प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा 12% आवेदन EPF के तहत दिया जाता है। दूसरी स्किल इंडिया मिशन, इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण में सक्षम बनाना है, जिससे उन्हें बेहतर आजीविका हासिल हो। इसमें बहुत से कोर्स शामिल हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और क्रिएटिव आर्ट। और हाल ही में शुरू किए गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अग्निवीर योजना, इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा। इसमें आवेदन करने वाले युवक और युवतियों की उम्र 17 वर्ष से अधिक तथा उनकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। अग्निवीरों को प्रति माह ₹30,000 की सैलरी दी जाएगी और जब भी सेना छोड़ेंगे तो 11,70,000 का पैकेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर योजना के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास किया गया है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 2 मिस्टर केशव। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह बताने का प्रयास करेंगे कि स्किल इंडिया मिशन के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस मद में सरकार द्वारा कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 50 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। हमारी सरकार इसमें रुपए 1600 करोड़ का खर्च करेगी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 3 मिस अदिति। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी मुझे ये बताने की कृपा करेंगे कि भारत के किन राज्यों में बेरोजगारी दर अधिक है और किन में कम? ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि अप्रैल 2022 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य में बेरोजगारी की दर 34.5% है, जो कि सभी राज्यों में सबसे अधिक है। राजस्थान में 28.8%, बिहार में 21.1%, कम बेरोजगारी वाले राज्य हिमाचल प्रदेश में 10.2%, छत्तीसगढ़ में 0.6% और असम में 1.2% है। No more supplementaries please. Next question number 106 मिस रुखसार। अध्यक्ष महोदय, क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे का केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश के विभिन्न उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? क्या विभिन्न उद्योगों के द्वारा निर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला सामने आया है? यदि हाँ, तो ऐसी कंपनी, उद्योगों तथा राज्यों का ब्यौरा दें। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा जल तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 65 प्रदूषण उद्योगों की इकाइयों को सूचित किया गया है कि पानी को शुद्ध करने के बाद ही किसी भी भूमि जल धारा में प्रवाहित करें। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 31 मार्च 2022 तक 355 ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई है जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती हैं तथा चालू वर्ष के दौरान केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा
किए गए। इसके अलावा पर्यावरण अधिनियम 1926 भाग 5 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को 95 निर्देश भी जारी किए गए हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 1 मिस मलिश्का। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आम जनता को पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में जागरूक बनाने के लिए कुछ विशेष नीतियां अपना रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट प्लीज। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि सरकार मीडिया, अखबारों तथा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को दूषित पर्यावरण के भयानक परिणामों के बारे में जागरूक कर रही है। स्वयंसेवी संगठनों की इस दिशा में मदद दी जा रही है। यही नहीं, इसके अलावा 10 अगस्त 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेशनल बोर्ड ने एयर क्वालिटी इंडेक्स के जांच के द्वारा दूषित स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की जांच करके सार्वजनिक बोर्डों पर दर्शा दी है। The question hour is over. No more supplementaries, please. Madam, a serious breach of privilege has been committed by the leading newspaper of Delhi. Commenting on the recommendation of the Public Accounts Committee, the paper has attributed dishonest motive. And I request you to allow me to raise a question on that matter. Mr. Shah, have you given due notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of newspaper cutting, and I shall consider it. I have already given the notice of it at 11 a.m. today. It will be examined when it's come to me and let you know my decision. Now, paper to be laid. Honorable Minister of Environment, please. Madam, I beg to lay on the table the House copy of annual report with the wood production of 2006 to 2007 with an edited report of the accounts thereof. Honorable Minister of Natural Resources. Madam, I beg to lay on the table a copy of each of the following papers, Hindi and English version, under subsection of section 619A of the Companies Act 19. Firstly, it is review by the government of the working of the National Mineral Development Corporation Limited, Hyderabad for the year 2006 and 2007. Secondly, annual report of the National Mineral Development Corporation Limited, Hyderabad for the year 2006 and 2007, along with audited accounts and the comments of the Controller and the Auditor General thereof.